Hello everyone, today we are starting exercise 7.3 some more criteria for congruence of triangles. In this exercise, we will study some sums related to SSS congruency, RHS congruency, SAS congruency. So the first question is triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same side, same base BC, and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that triangle ABD congruent to triangle ACD, triangle ABP congruent to triangle ACP, AP bisect angle A as well as angle D, and AP is the perpendicular bisector of BC. Now this is the figure. Now what is given in the question? ABC, this triangle is an isosceles triangle, means in which two sides are equal. So AB equals to, first thing we have AB equals to AC. ठीक है. Now second triangle, the second triangle is DBC, this one, this green triangle. DBC is also an isosceles triangle, means in this triangle also two sides will be equal. So this side BC equals to CD. Second thing we have BC equals to CD. So these two things we have. Now third thing, it is given that this AD extended to P intersecting BC on extended to P intersecting BC on P. इस AD को जब एक्सटेंड किया तो वो BC को P पे इंटरसेक्ट करता है. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड 4 पार्ट्स वी हैव टू प्रूव. First part is triangle ABD congruent to triangle ACD. Now see the solution figure. Here this one ABD, this triangle congruent to ACD, this triangle. ये दोनों triangle आपको congruent prove करना है. Now AB equals to AC, क्योंकि हमको given था ABC is an isosceles triangle, तो AB equals to AC given है, and BD equals to this BD equals to CD because BDC is an isosceles triangle. ये अभी मैंने ऊपर बताया था. Now third thing, this AD equals to AD, ये वाला जो आपका AD है, तो AD equals to AD क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया. मीन्स कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गई, साइड साइड साइड. SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से this triangle congruent to this triangle. Now it is written in the solution also. First of all you will write given AB equals to given in given AB equals to AC because ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle. ठीक है. Then DB equals to DC because triangle DBC is an isosceles triangle. Now to prove में वो 4 parts जो ऊपर क्वेश्चन में given थे, you will write that. Now first part, triangle ABC congruent to triangle ACD. तो इन दोनों ट्राइंगल में देखना है AB equals to AC given है, BD equals to CD given है, and AD equals to AD कॉमन है. तो by SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपका ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो ये एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT से. CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT, बिकॉज अभी ये नीचे काम आएगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. नाउ सेकेंड क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP. हियर ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP. नाउ सी इन द फिगर, लुक इन द फिगर. ABP आपका कौन सा ट्राइंगल है, दिस वन. दिस वन इज ABP. ये आपका ABP ट्राइंगल है, राइट एंगल जैसा जो दिख रहा है. ठीक है. और ये आपका ABP एंड ACP, इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको देखना है ABP एंड ACP में. ठीक है. अब ABP एंड ACP में AB इक्वल्स टू AC फर्स्ट थिंग गिवन है, एंड सेकेंड थिंग क्या है इसमें, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव्ड अबाउ इन पार्ट 1. ठीक है, वो यहाँ पे काम आएगा. एंड थर्ड थिंग AP इक्वल्स टू AP कॉमन, मीन्स ये वाली साइड, ये एंगल एंड ये साइड. इसको मैं मार्क कर देती हूँ पर्पल से. दिस साइड, दिस एंगल एंड दिस साइड AB, और इधर हो जाएगा आपका AC,
ठीक है। और यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, AP, और ये बीच में एंगल 1 एंड इधर एंगल 2। ठीक है, तो ये साइड, एंगल एंड साइड, तो SAS कॉन्ग्रेंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। अब जब साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो CPCT से आपको क्या करना है, ये वाला ट्राइंगल है ABP। ठीक है, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 CPCT से करना है, एंड BP इक्वल्स टू CP, ये भी आपका CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। और वो हमारे वर्क आएंगे नीचे, काम में आएंगे वो हमारे, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड BP इक्वल्स टू CP बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब वो नीचे वर्क करेंगे ये जो भी चीज़ें हमारी। नाउ देन नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपका। थर्ड पार्ट, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, AP बाइसेक्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। जो आपकी AP लाइन है, ये आपका फिगर है, AP लाइन है, ये AP लाइन वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव करना है, एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 प्रूव करना है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 में। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 का मीनिंग क्या हो गया, AP बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 जब हम प्रूव करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस AP बाइसेक्ट एंगल D ऑल्सो। इस D को भी 2 इक्वल पार्ट्स में, AP जो है वो इस एंगल D को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब D को आपको एंगल D को डिवाइड कर रही है इक्वल पार्ट्स में, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। कौन कौन से ट्राइंगल हैं वो, ये वाले स्मॉल वाले, DBP दिस वन एंड DCP दिस वन। अब ये दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे, ये आपको गिवन था BD इक्वल्स टू CD, क्योंकि DBC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये BD इक्वल्स टू CD आपको ऑलरेडी गिवन था। ये हमने प्रूव कर दिया था BP इक्वल्स टू CP, ऊपर सेकंड पार्ट में ये हमने प्रूव किया था, प्रूव्ड अबाउ। ठीक है, एंड थर्ड थिंग एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी हमने कहाँ पे प्रूव किया था, सेकंड पार्ट में हमने इसको प्रूव किया था। तो अब ये कौन सा हो गया आपका राइट ये आपका क्या हो गया, BP इक्वल्स टू CP दिस वन। ठीक है, एंड BP इक्वल्स टू CP फर्स्ट थिंग, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी प्रूव्ड अबाउ, ये भी प्रूव्ड अबाउ, एंड DP इक्वल्स टू DP कॉमन। ठीक है, क्योंकि जब हम ये BD इक्वल्स टू CD लेंगे तो फिर वहाँ पे कोई कॉन्ग्रेंसी रूल वर्क नहीं करेगा, तो इसलिए आपको ये लेना है DP इक्वल्स टू DP। तो ये कौन सा हो गया, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए आपके स्मॉल वाले, दिस वन एंड दिस वन क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए, इसका मतलब एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 किससे हो जाएगा, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से हो जाएगा। तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 का मीनिंग क्या हो गया, AP बाइसेक्ट्स एंगल D ऑल्सो, और AP बाइसेक्ट्स एंगल A हम ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ब्रैकेट में यू कैन राइट प्रूव्ड अबाउ, सो AP बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, नाउ अब फोर्थ पार्ट नंबर 4, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जो आपकी ये AP लाइन है, AP लाइन क्या है आपकी, ये जो AP लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है, ये आपकी लाइन है और ये यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बोथ द साइड 90-90 फॉर्म करना और इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो BP इक्वल्स टू CP हम ऑलरेडी पहले प्रूव कर चुके हैं पार्ट नंबर 2 में। अब हमको सिर्फ ये प्रूव करना है, ये 90-90 मतलब एंगल 3 एंड एंगल 4 आपके कितने डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, 90-90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। अब ऊपर हमने प्रूव किया था एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड अबाउ। अब एंगल 3 एंड एंगल 4 को जब हम मिलाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 3 को एंगल 3 रहने दो, एंगल 4 को वी कैन राइट एंगल 3, क्योंकि 3 और 4 इक्वल है। तो 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 2 90 डिग्री, और जो एंगल 3 होगा वही एंगल 4 होगा, क्योंकि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है।
तो ये 90 डिग्री प्रूव हो गया। ये आपका सॉल्यूशन है। बी पी इक्वल्स टू सी पी प्रूव्ड अबाउ, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 प्रूव्ड अबाउ। एंगल 3 है प्लस 4 180 डिग्री, लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल 4 को हमने एंगल 3 लिख दिया क्योंकि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है, तो 2 एंगल 3 180 आ जाएगा। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90 आ गई। मीन्स एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 ईच 90 हो गया। तो देयरफॉर ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी पी, क्योंकि ए पी इक्वल्स टू बी पी है। और सेकेंड थिंग, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री एंगल भी फॉर्म हो रहा है और वो जो ए पी है वो इस बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1 इन विच वी हैव डन 4 पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए डी इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी। शो दैट AD bisect BC and AD bisect angle A। ठीक है। Now figure is not given to you, you have to draw the figure yourself। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। ये एक आपको ट्राइंगल बनाना है आइसोसेलेस A B and C। ठीक है। इसमें AD is an altitude, ये आपका AD, ये क्या है आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया, वो 90 डिग्री फॉर्म करता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ठीक है। ए बी एंड ए सी इक्वल हैं क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ए बी ए सी आपका इक्वल हो गया। नाउ शो दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी। ये जो ए डी है ये बी सी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। मीन्स क्या प्रूव करना है आपको, बी डी इक्वल्स टू सी डी। ये जो बी डी है और ये जो सी डी है ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। और सेकेंड थिंग, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए डी एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है। मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये आपको प्रूव करना है। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका। तो अब दिस इज़ द फिगर। अब देखो ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी में, ये इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या थिंग्स इक्वल हैं। ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये आपका गिवन है। ए डी इक्वल्स टू ए डी, ये आपका कॉमन हो गया। और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 90 डिग्री है, क्योंकि ए डी क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 90 डिग्री। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय आर एच एस, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अपोजिट, अगेन आई एम शोइंग यू, ये आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, ये आपका हाइपोटेनियस है। और ए डी इक्वल्स टू ए डी आपका कॉमन है, मतलब कोई सी भी एक साइड होनी चाहिए, या तो ए डी होती या फिर बी डी होती। तो ये 90 हाइपोटेनियस और साइड, तो राइट हाइपोटेनियस और साइड मीन्स ये आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बी डी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2। Now in this module we have done question number 1 and 2, and you have to solve these questions in your notebook. And in the next module we will do question number 3, 4 and 5. So like this we will complete our exercise number 7.3. So in next module we will complete exercise 7.3. So today this is all. Do these sums in your notebook. Thank you.